नमस्कार छात्रों। आज हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। लैंग्वेज डिसऑर्डर ये जो टॉपिक है, ये खास करके साइकोलॉजी का टॉपिक है। साइकोलॉजी और खास करके क्लिनिकल साइकोलॉजी का टॉपिक है। पर अब हमें इस टॉपिक को साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ना है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को जानने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के आधार पर आप इस विषय के महत्व को जान पाएंगे। Your brain is amazing, and nobody else has one quite like it. Although everybody's brain looks the same, they all work differently from each other. Just as we all have different color skin, hair, and eyes, we all have a brain that's individual to us. Like a fingerprint, we have different personalities, tastes, strengths, and weaknesses. Our brains can even see and understand the world in different ways. One of those ways is called dyslexia, which affects how the brain handles information it sees and hears. Dyslexic people may find it difficult to match letters to sounds and to remember how to spell words. They may even see letters moving around when they're reading. They might have trouble telling left from right. Remembering lots of instructions can be especially hard. They may need more thinking time to remember the right word. Chicken! No, wait. Duck! As well as memorizing sequences. It may be difficult for them to hold a pencil and to write by hand. Even organizing themselves can be difficult. But everyone with dyslexia is different. It can affect how people feel about themselves. When they struggle with a task that other people find easy, they may feel frustrated, angry, or sad. Some dyslexic people try to hide their difficulties because they are worried about what others will think of them. However, thinking differently can be a really good thing. A person with dyslexia may be very good at seeing patterns and solving problems, imagining and rotating objects in their heads, telling stories and making people laugh, taking things apart, understanding how they work, and figuring out how to put them together again. Inventing, drawing, painting, and making things. Seeing the bigger picture. Dyslexic people can do a lot of things. They just might do them in a different way to how others would, and many of them have even become famous for it. There have been many famous dyslexic inventors, writers, scientists, business people, astronomers, paleontologists, actors, cooks, singers, artists, architects, and so on. Dyslexic people have changed the world. See dyslexia differently. Your brain is amazing, and nobody else has one. हाँ, तो आपने ये वीडियो देखा और आपने ये देखा कि आप जो एक डिसऑर्डर है वो एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ कैसे बन सकती है। आपने एक पिक्चर जो तारे ज़मीन पर देखा होगा, आमिर खान की जो फिल्म आई थी, और उसमें वो बच्चे को डिसलेक्सिया तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे, तो वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया और साथ ही में किस तरीके से उस बच्चे का जो मोटिवेशन है या फिर जो हैंडलिंग है उसे किस तरीके से बढ़ाया गया, ये उसमें दिखाया गया था। तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है, वो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हमारे पास कौन कौन से तरीके के आ रहे हैं। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो
लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, तो लैंग्वेज माने एक तो रिटन फॉर्म में या फिर स्पोकन फॉर्म में होता है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एक ऐसी डिसऑर्डर है, ऐसा एक प्रॉब्लम है जो कि हम लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को अब पढ़ने वाले हैं। तो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होती है उसमें कई सारे प्रकार है। उन प्रकारों में से कुछ प्रकार है ऑटिज्म, आप यहाँ देख सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जिसे SLI के नाम से भी जाना जाता है, और डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, एफेजिया और डिस्प्रैक्सिया एक्सेट्रा। तो इन सभी डिसऑर्डर्स को हम लोग बारी बारी देखेंगे, जो कि आपके भाषा से संबंधित जो समस्याएं हैं, भाषा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग एक आगे की आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला देखते हैं एफेजिया। तो एफेजिया जो डिसऑर्डर है, उस डिसऑर्डर में होता ये है कि आपके ब्रेन में, आपकी मस्तिष्क में अगर कुछ डैमेज है तो उसको हम लोग, उस इम्पेयरमेंट को अफेजिया बोलते हैं। उससे भाषिक जो भी समस्याएं आती है उसे एफेजिया बोला जाता है। तो पर्टिकुलरली इसे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये कहाँ पर है, मतलब कौन सी पार्ट में जो डैमेज होता है। तो ये होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर में, जो कि एफेजिक पेशेंट के लेफ्ट हेमिस्फीयर में होने से इम्पेयरमेंट आ जाती है। तो कई सारे एफेजिया के प्रकार भी है। तो जैसे कि हमने अपनी जो कल की कक्षा थी उसमें डिस्कस किया था कि ब्रोकाज एरिया होता है और वर्निक्स एरिया होता है। तो ब्रोकाज एरिया भी एक ब्रोकाज एफेजिया को एक जन्म देता है, और वर्निक्स एरिया वर्निक्स एफेजिया को। तो दोनों तरीके के एफेजिया है, और उन दोनों तरीके के एफेजिया को हम लोग बारी बारी देखेंगे और समझेंगे। तो अब देखिए, वर्निक्स एफेजिया मैंने जैसे कहा था कि जो आपका वर्निक्स एरिया है, जो खास करके यहाँ लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, ये जो एरिया है इसे वर्निक्स एरिया कहा जाता है। तो इस वर्निक्स एफेजिया में होता क्या है कि हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी लॉस हो जाती है। अब कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी का मतलब है कि अगर हम, हमारे कोई जो पेशेंट है जो वर्निक्स एफेजिया से ग्रस्त है, तो उनको समझने में, मतलब जो भाषाई शब्द है वो समझने में, या फिर हम बोले उनके साथ बोलेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं ये समझने में परेशानी होती है, कठिनाइयां होती है। तो यूजुअली जो वर्निक्स एफेजिया से ग्रस्त जो लोग होते हैं, वो, अगर हम लोग बहुत जल्दी बोलने की कोशिश करेंगे उनको, और बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे, तो वो समझ नहीं पाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी उनमें कम होती है, या फिर उसमें भी लेवल्स होते हैं, कम होती है, किसी में नहीं होती है, या किसी में बहुत कम भी पाई जाती है। तो ये आपका दो प्रकार की एफेजिया है, एक आपका वर्निक्स एफेजिया और ब्रोकाज एफेजिया। अब ब्रोकाज एफेजिया में होता ये है कि आपका, देखिए, ब्रोकाज एरिया आपका स्पीच प्रोडक्शन से संबंधित एरिया है। तो प्री मोटर एरिया, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्री मोटर एरिया जो होता है ब्रेन का, उस प्री मोटर एरिया की डैमेज से ब्रोकाज एफेजिया ग्रस्त हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर ये जो मोटर कमांड्स है, मतलब कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग, जैसे हमारा जो स्पीच ऑर्गन है, हम लोग ओठ, दांत, जिह्वा और अपने कई सारे जो अवयव है, जो वाक अवयव बोले जाते हैं, उनका एक सिंक्रोनाइजेशन से हम लोग जो होता है वो स्पीच का उत्पादन करते हैं, वाक उत्पादन करते हैं। पर अगर ब्रोकाज एरिया में हमारा यहाँ पर वो डैमेज होता है, तो जो ब्रोकाज एफेजिया है, उस ब्रोकाज एफेजिया इस ग्रस्ती से, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि स्पीच प्रोडक्शन में कठिनाइयाँ आती है लोगों को। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि कई सारी जगह पे हम लोग ऐसे लोग देखते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, बोलना मतलब हकलाते हुए बोलते हैं, कोई एक ही
वाक्य होता है उस वाक्य को रिपीटेशन में करते हैं। तो इस तरीके की जो कठिनाइयाँ होती हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में जो कठिनाइयाँ होती है, उसे हम लोग ब्रोकाज एफेजिया के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कोई ब्रोकाज एफेजिया से ग्रस्त है, तो उस व्यक्ति के बारे में, जैसे कि वो कभी कभी वाक्य को ठीक से बोल नहीं पाता है, उसके बाद में उसको वो जो शब्द है वो शब्द याद नहीं आता, मतलब वो शब्द याद ना आना मतलब वो उसको वो प्रोनाउंस करने में परेशानी होती है। उसके बाद में कई सारे जो शब्द होते हैं फंक्शन वर्ड्स है, वो फंक्शन वर्ड्स का वो अ, उपयोग नहीं कर पाता है, ठीक से नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये उपयोग न करने की वजह से कई बार हम देखा गया है कि जो ब्रोकाज शैक्षणिक कोटि में जिसे बोलेंगे कि एक योग्य वाक्य नहीं बोल पाता है, अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस को वो बोलता है। तो ये ब्रोकेज एफेजिया हो गया और वर्निक्स एफेजिया हो गया, ये दोनों कैटेगरीज हमने देखी। पर इन दोनों में जो अंतर पाया गया है वो अंतर दो बिंदुओं पर पाया गया है। एक जो बिंदु है कि भैया ये जो स्पीच का ग्रामेटाइजेशन है, मतलब स्पीच ग्रामेटाइजेशन में दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वर्निक्स एफेजिया भी और ब्रोकाज एफेजिया भी। बट हम ये बोल सकते हैं जो अग्रामेटिकल सेंटेंस है वो ब्रोकाज एफेजिया में ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब वर्निक्स एफेजिया में आप बोलते हैं और ब्रोकाज एफेजिया में भी बोलते हैं, पर ब्रोकाज एफेजिया में ज्यादा अग्रामेटिकल सेंटेंसेस होने की संभावना है। और जो जैसे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन वर्निक्स एरिया में आपका कम होता है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, बट ब्रोकाज एरिया में आप कम कर पाते हैं। आप बोल नहीं पाएंगे पर वो सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो आप समझ भी पाएंगे। और वर्निक्स एरिया में है कि भैया आप समझ नहीं पाएंगे, आप बोल पाएंगे। तो ये जो है दोनों तरीके के जहाँ अफेजिया से ग्रस्त व्यक्ति है उसे हम लोग ग्लोबल एफेजिया भी बोलते हैं, ग्लोबल एफेजिया। अब ये जो ग्लोबल एफेजिया है इसी का हम लोग एक जैसे कि है पार्ट, या दोनों अगर इम्पेयरमेंट्स है ब्रोकाज एरिया में भी और साथ ही वर्निक्स एरिया में भी, तो ग्लोबल एफेजिया होता है जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रोडक्शन दोनों में इम्पेयरमेंट पाई जाती है। अब दूसरा एक एफेजिया है, उसका प्रकार एनोमिया। एनोमिया या फिर एनोमिक एफेजिया जिसको बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि हम नाउन्स को हैंडल नहीं कर पाते, नाउन्स को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर हम लोग कई बार उन कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर आपको दिखाया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को आपको याद तो आता है पर उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है ये हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, या फिर वो रिट्रीवल में परेशानी होती है। तो ये जो है एफेजिया, एनोमिया या फिर एनोमिक एफेजिया जिसे बोलते हैं, जिसमें कि अगर पेशेंट को हम पूछा जाए कि भैया ये क्या है, ये क्या है, तो ये मैं बोलूंगी ये पेन है, डिजिटल पेन है। तो अ, वो पेन नहीं बोल सकता है, वो पेन नहीं बोल सकता कि वो बोलेगा अरे वो जिससे हम लोग लिखते हैं वो क्या है। वो इस तरीके का एनोमिया टाइप का एनोमिक एफेजिया भी लोगों में पाया जाता है। तो ये एफेजिया के दो मेजर प्रकार है। इसके अलावे भी रिसेप्टिव एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया में क्या है कि यहाँ पर जब हम लोग कोई स्पीच प्रोडक्शन करते कोई स्पीच प्रोडक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ वो स्पीच प्रोडक्शन मीनिंगलेस होता है, और साथ ही में जो कि
एक समझ होती है या फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें भी डिफिकल्टी जाती है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोकाज एफेजिया और वर्निक्स एफेजिया। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड यू डू बिफोर यू केम इनटू द हॉस्पिटल। तो पेशेंट क्या कहेगा? अब देखो यहाँ पेशेंट ने जो आंसर दिया है, नाउ मिस्टर आई वांट टेल यू दिस हैपेंस व्हेन ही रेंट। तो ये जो बात है, एक तो क्या हो रहा है कि जो पूछा जा रहा है उससे, वो बता नहीं पा रहा है ठीक से, मतलब वो एक हो गया। और दूसरा है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अननेसेसरी मीनिंगलेस स्पीच प्रोडक्शन में वो समय चला जाता है पेशेंट का, तो इसे रिसेप्टिव एफेजिया बोला जाता है। अब ये एफेजिया के जो मेजर प्रकार है वो बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार है, पर हमें ये 3 खास करके ध्यान रखने हैं, और अगर कुछ आगे आता है तो मैं धीरे धीरे बताऊंगी। अब ऐसा और एक प्रकार है लैंग्वेज, जैसे कि हमने स्पोकन और रिटन में कहा था, तो रीडिंग भी एक भाषा का एस्पेक्ट है। तो एलेक्सिया एक डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसे हम लोग रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और रीडिंग डिसऑर्डर में यूजुअली ये होता है कि जब हम लोग कोई शब्द पढ़ने की कोशिश करते हैं, मतलब जो शब्द लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ पाते, मतलब रिटन कॉम्प्रिहेंशन जिसे बोलेंगे, रिटन को हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, रिटन वर्ड्स को पढ़ने की एबिलिटी हमें हमारी इम्पेयर हो जाती है। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि भैया अगर हम लोग रिटन वर्ड्स पढ़ नहीं पा रहे हैं तो विजुअल रिकग्निशन डिफिकल्टी भी है साथ ही में, क्योंकि हम इसका मतलब हमको देखने को भी प्रॉब्लम है। तो ये जो है, ये हमारी विजुअल रिकग्निशन डिफिकल्टी भी एक तरीके से उसको जन्म देती है। साथ ही में दूसरा उसका एक एस्पेक्ट ऐसा है कि फोनेटिक एसोसिएशन भी मिसमैच कर जाता है। मतलब मान लीजिए कि मैं कहीं पर यहाँ कोई यहाँ लिख रही हूँ क या फिर को, इस तरह की, तो को जो है उस को शायद मैं कुछ और भी बोलूं, का ही बोल दूं, या फिर की ही बोल दूं। तो ये जो फोनेटिक एसोसिएशन है, उस फोनेटिक एसोसिएशन में भी मिसमैच हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति को तो वो पता रहता है सब को है, पर जब वो रीड करता है तो रीड करते वक्त वो उसको का रीड करेगा। तो कई बार हमने, जब छोटे बच्चे होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कोशिश करते हैं, तो हमने देखा है कि क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत फास्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ने में परेशानी होती है, वो ठीक से फास्ट पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसे एलेक्सिया बोलते हैं। ये जो एलेक्सिया है, इस एलेक्सिया में विजुअल रिकग्निशन और साउंड रिकॉल, तो ये दोनों भी भाग उसमें अंतर्भूत है। विजुअल रिकग्निशन और साथ ही में साउंड, उस फोनेटिक साउंड को पहचानना। अब एलेक्सिया क्या होने के बाद देखिए एग्राफिया। एग्राफिया जो होता है वो राइटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। अब एलेक्सिया आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, तो एग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है। जब कोई लेटर फॉर्म करना है, मतलब मैं आपको बोलूंगी कि आप लिखो एक शब्द आंख, या फिर कार्यक्रम, या फिर रीत, इस तरीके के जो श्रुत लेखन वाली जो बात मैं कर रही हूँ, तो उसे हम लोग लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, पर जो लिखावट होती है उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, ये
जो डिसऑर्डर है उसे अग्राफिया कहते हैं। तो यूजुअली इसको हम मोटर कंट्रोल एरियाज ऑफ ब्रेन में इम्पेयरमेंट की वजह से अ, हम बोल सकते हैं कि एग्राफिया से बच्चे ग्रस्त होते हैं। तो सिंगल लेटर अगर आपको लिखना भी है, देखो बचपन में कई बार होता है ना कि छोटा बच्चा एक लेटर लिखने के लिए कितनी सारी मेहनत करता है। वो उसे पहले सिखाया जाता है कि डॉट कैसे, फिर खड़ी पाई कैसे लिखना है, सर्कल्स कैसे बनाने हैं। तो ये लिखना मतलब हमारे पूरे जो अवयव है उसके जो मसल्स है वो एक मोटर कंट्रोल से या फिर उस हलचल से गुजरते हैं। तो उस का रिजल्ट हमें मिलता है कि भैया हम लोग एक कोई अक्षर लिख पाए। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अग्राफिया में ऐसी मोटर इम्पेयरमेंट्स की वजह से बच्चा लिख नहीं पाता है। लिखना उसके लिए एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है। तो होता है ऐसे क्लास में कई सारे बच्चे जो कि लिखने में बहुत पुअर होते हैं। उनकी लिखावट एक तो मतलब हैंडराइटिंग भी बहुत गंदी होती है, और साथ ही में वो जो लिखते हैं वो शुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अग्राफिया से ग्रस्त है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब लर्निंग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये अग्राफिया के बारे में बड़ा देखा हमने। और आगे है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म जो कि है एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, जो कि जेराल्ड एंड हैप ने 2003 में उसे बताया गया कि भैया ऑटिज्म मतलब एबनॉर्मलिटी इन सोशल बिहेवियर। आपने आजकल कई सारे बच्चों में मतलब कई सारे क्लिनिकल एडवाइजर्स भी आ गए हैं, काउंसलर्स भी आ गए जो कि ऑटिज्म के बच्चों को ठीक करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं। तो बेसिकली जो ऑटिज्म है वो ऑटिज्म जैसे कि बोला गया है कि सोशल बिहेवियर, एबनॉर्मेलिटीज इन सोशल बिहेवियर, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन है। तो इसका जो ओरिजिन है वो जीन्स में भी पाया जाता है। मतलब कई सारे जो जीन्स हमारे मान लो माता पिता में भी ऑटिज्म नहीं है, फिर भी अगर वो जीन एक्टिवेट हो गया आगे की जनरेशन में तो बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त हो सकता है। तो ऑटिज्म ये सोशल बिहेवियर कैसे है, मैं ये आपको एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। कई बार हमने ये देखा है कि कोई बच्चा क्लास में बहुत ज्यादा मस्ती करता है। मतलब उसको अगर बोला भी जाएगा कि भैया आप जो है ये अच्छा मैनर नहीं है, आप ठीक से बैठिए, डिसिप्लिन में बैठिए, फिर भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करता रहेगा, अपने दोस्तों को मारेगा, किसी का कुछ फाड़ देगा या फिर अपने मस्ती में रहेगा। तो इस तरीके के जो एबनॉर्मलिटीज है, फिर भाषा भी उसमें इन्वॉल्व है, कॉग्निशन भी उसमें अपने आप ही इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जो ऑटिज्म के प्रॉब्लम्स है वो अराउंड 14 मंथ्स ऑफ एज हमें पता चल जाती है कि भैया ये बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है। और साथ ही में हेलो। हाँ सर। नहीं सर। हाँ 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 हाँ। हम्म, हो हो. बरं बरं, मी घेऊन येईल ना सर मी. हो. हम्म. बरं बरं, चालेल सर. चालेल चालेल, मी माझं ना लेक्चर रेकॉर्ड करते. मुलं आले नाही आज रेकॉर्ड करून. हा. हे पण रेकॉर्ड झालं आता. ठीक आहे. ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 मंथ्स अराउंड
ये ऑटिज्म के बच्चों को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते कि ये ऑटिज्म वाला बेबी है या फिर उससे ग्रस्त है। तो यहाँ ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो कई सारे एबनॉर्मेलिटीज हम लोग बोल सकते हैं, उनके कई सारे ब्रेन एरिया में एबनॉर्मेलिटीज होती है, कम ज़्यादा प्रमाण में होती है। तो ये ऑटिज्म सबसे पहले 20th सेंचुरी में पता चला कि भैया ये भी इस तरीके का डिसीज है, समस्या है। और ये भी पता चल गया कि 5 times मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स, मतलब स्त्रियों में इसे कम पाया जाता है। तो ये ऑटिज्म के बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को आने लगे हैं ऑटिज्म में। और इस तरीके से वो बहुत जिसे बोलेंगे ना कि भैया बच्चे तो परेशान है ही, पर माता पिता इतने ज़्यादा परेशान हैं ऑटिज्म के कि वो आजकल साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल काउंसलिंग के लोगों तक पहुंच रहे हैं अपने ऑटिज्म के बच्चों को लेकर। अब आगे का जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है वो है अकैल्कुलिया। अकैल्कुलिया मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि अकैल्कुलिया एक एफेजिया का ही फॉर्म बोला जा सकता है इसे। और इस एफेजिया के फॉर्म को हम लोग अकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होना, जैसे कि 5 मतलब 3 is 5 is greater than 3 और 6 is less than 7, इस तरीके का जो मैथमेटिकल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है या लॉजिकल थिंकिंग है, उसमें हम लोगों को यहाँ अकैल्कुलिया पेशेंट्स को डिफिकल्टी होती है। तो ये अकैल्कुलिया भी एक तरीके से लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अब दूसरा है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब क्या है? देखिए, जब बोलते हैं कि बच्चा धीरे धीरे समाज का अनुकरण करके, अपने फैमिली का अनुकरण करके भाषा सीखता है, तो इस भाषा को सीखते वक्त बहुत बार ये पाया जाता है कि कुछ बच्चे अपने भाषा जल्दी बोल लेते हैं और कुछ बच्चे बहुत धीरे धीरे या फिर बहुत ग्रेजुअली बोलने लगते हैं। तो यहाँ जो भाषा बोलने में मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी हम जिसे बोलेंगे, केवल बोलने से संबंधित नहीं है, वो आपकी रीडिंग से भी संबंधित है, लिखने से भी संबंधित है और राइटिंग से भी संबंधित है। तो ये रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन और साथ में ही अरिथमेटिक, ये सारी जो लर्निंग एबिलिटी है वो उसको डेवलप करना एक हमारा गोल होता है जब हम लोग लैंग्वेज लर्निंग के फेज में रहते हैं। पर अब अगर उसमें डिसेबिलिटी आ गई, तो उसमें डिसेबिलिटी आने पर हमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम लोग उसको स्पेल नहीं कर पा रहे, ठीक से राइट नहीं कर पा रहे, साथ ही में रीडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे। और जैसे कि बच्चा स्पेलिंग नहीं ठीक से कर पा रहा है तो वो बी को डी लिख रहा है, जे को जी लिख रहा है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उससे ये पता चलता है कि इसका जो प्रॉब्लम है वो फिर पढ़ाई में पीछे रह जा रहा है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब उसको अगर इस तरीके की डिसेबिलिटी है आती है, तो ये मतलब नहीं है, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा, मैंने उदाहरण दिया उस पिक्चर का तारे ज़मीन पर, तो उसमें ये नहीं है कि भैया उसमें इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ये पाया गया है कि उन बच्चों में सुपेरियर इंटेलिजेंस भी होता है, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता वाले बच्चे भी होती है, केवल उनमें ये डिसेबिलिटी रहती है। तो डिसलेक्सिया को अ, ये जो शब्द है लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी को हम लोग डिसलेक्सिया नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं, जिसमें कि लर्निंग प्रॉब्लम और मतलब रीडिंग प्रॉब्लम के रिलेटेड वो एक टर्म पाई जाती है। तो उसमें डिसलेक्सिक, जैसे वो बच्चा जो था पिक्चर में वो डिसलेक्सिक ही था, उसको पढ़ना या फिर लिखने वाली जैसी प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो इसमें डिसलेक्सिया में कई सारे डिसलेक्सिक प्रकार भी है।
जैसे कि पहला है कि प्राइमरी डिसलेक्सिया। तो प्राइमरी डिसलेक्सिया का मतलब है कि डिसफंक्शन, मतलब डैमेज तो परमानेंट डैमेज नहीं है, पर डिसफंक्शन है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन न करते हुए वो डैमेज, वो जिस तरीके से चाहिए वो फंक्शन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी डिसलेक्सिया में होता ये है कि आप जो इंडिविजुअल है जो कि प्राइमरी डिसलेक्सिया से सफ़र है, ग्रस्त है, तो उनमें कठिनाइयाँ होती है रीडिंग, स्पेलिंग की, राइटिंग की। और उस प्राइमरी डिसलेक्सिया में कई बार ये भी पाया जाता है कि थ्रू द हेरिडिटरी भी ये प्रकार होता है। यहाँ देखिए जीन्स के थ्रू भी हो रहा है। और दूसरा जो डिसलेक्सिया का प्रकार है वो है सेकेंडरी और डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया। उसमें जो कि हम देख सकते हैं कि कई बार हार्मोनल डेवलपमेंट के दौरान जो फीटल ग्रोथ होता है, मतलब माँ की कोख में ही जो बच्चा डेवलप होता है, तो उसके दौरान उस डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया से जो बच्चा है वो ग्रस्त हो सकता है। तो डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया अगर होता है तो उसमें बच्चे का कई सारा नुकसान होता है, मे बी वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, वो सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है वो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है इसमें। अ, अब आगे देखिए अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर डिसीज आपको पता है कि कई बार अल्जाइमर आपको मुझे याद नहीं, अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर आई थी जिसमें कि अमिताभ बच्चन को अल्जाइमर डिसीज था। मतलब वो धीरे धीरे अपने सब कुछ भूलता जा रहा था, मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अगर वो मान लीजिए गोली खाने जाता है तो वो वहाँ कबर्ड खोलता है, कबर्ड खोलते बराबर वो ब्लैंक हो जाता है कि भैया मैंने कबर्ड क्यों खोला है। तो ये अल्जाइमर डिसीज जो जो कि मैं लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं बोल सकती हूँ, उसे ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर बोल सकती हूँ, पर वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी को। मतलब देखिए कि अगर आपको कुछ बोलना भी है तो आप भूल जाएंगी कि आपको क्या बोलना है। आपको वो कुछ चीज़ों को कमेंट करना है तो आपको वो कमेंट भी आप वो नहीं कर सकती कि भैया सामने वाले ने क्या बोला है, आप भूल जाएंगे। तो जो ब्रेन डिसऑर्डर होने के बावजूद भी वो भाषा से संबंधित डिसऑर्डर या फिर डिसेबिलिटी है ये माना जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो अल्जाइमर डिसीज है वो अल्जाइमर डिसीज होता है खास करके जो कॉर्टिकल रीजन्स होते हैं ब्रेन के, उस कॉर्टिकल रीजन में ऐसा कुछ डैमेज हो जाता है जो कि इरिवर्सिबल है। मतलब आप अगर अल्जाइमर डिसीज से ग्रस्त है तो आप फिर से उससे उभर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेमोरी फंक्शन है वो मेमोरी फंक्शन खास तौर से यहाँ डैमेज होता है, हैम्पर होता है, जिसमें आपको भूलने की आदत लग जाती है। तो इस वजह से आप कि ब्रेन की एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, कई सारी लोगों से बात करके याद करना, उसके बाद में कुछ जो होते हैं ना कोड वर्ड्स वगैरह, उस तरीके से वो सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगला है एसएलआई। एसएलआई मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। ये भी डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर है। और उस डेवलपमेंट ऑर्डर ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर अगर मान लीजिए कि आप नॉन वर्बल कॉग्निटिव या फिर सोशल इमोशंस या फिर सेंसोरीमीटर्स या फिर फ्रैंक न्यूरोलॉजिकल सेंसोरीमीटर्स, इस तरीके के जो भाव होते हैं, मतलब उस देखिए अगर मान लीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई इस तरीके के मतलब कठोर शब्द बार बार बोलता है, बच्चे हैं, आपको कैसे बोला जाता है वो पता नहीं है, तो उस डोमेन के लिए
उस भाषा के लिए वो स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो अच्छा जो प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है वो बच्चा कभी सीख नहीं पाता है। तो ये आपका स्पेसिफिक लैंग्वेज डिसऑर्डर हो गया। और अब ये डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आपको नाम से पता चल गया होगा कि फोनोलॉजिकल डिसेबिलिटी होती है, जो कि आपकी जो बच्चा है वो बच्चा जो जिस मतलब आइडेंटिफाई करना है कोई अक्षर को, किसी फोन को आइडेंटिफाई करना है, जब हमें हमें सिखाया जाता है कि क, तो क को आपको उस साउंड को भी पहचानना पड़ता है और उस साउंड को आपको पढ़ना भी पड़ता है। तो उस को पढ़ना और उसको उसका उच्चारण करके उसको आइडेंटिफाई करना, ये डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में नहीं आता है। मतलब वो जो बच्चा ग्रस्त है वो उस लर्निंग डिफिकल्टी से गुजरता है। अब ये फिर आता है स्पीच डिसऑर्डर्स। स्पीच डिसऑर्डर्स में यूजुअली जो स्पीच पैटर्न्स है वो स्पीच पैटर्न्स को हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो उन स्पीच डिसऑर्डर्स में खास करके वॉइस डिसऑर्डर है। वॉइस डिसऑर्डर, उसके बाद में स्पीच साउंड डिसऑर्डर या फिर आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, या फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स आप यहाँ देख सकते हैं। अब वॉइस डिसऑर्डर जो है वो आपका होता है कि पर्टिकुलरली आप जब प्रोनाउंस करते हैं तो आप उस शब्द को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। मतलब उसको उस वॉल्यूम, उसकी उसकी पिच या फिर उस ड्यूरेशन ऑफ साउंड, इस तरीके की जो एक प्रॉपर स्पीच प्रोसेस करने के लिए इन सभी का कॉम्बिनेशन होना होता है, वो आप नहीं कर पाते, उसे वॉइस डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर स्पीच साउंड डिसऑर्डर में आप जब शब्द को उच्चारित करते हैं तो उसमें आप आर्टिकुलेशन ठीक से नहीं कर पाते, उससे बोलते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर। कई बार बच्चे कोई चीज को कुछ अलग ही बोल देते हैं। मतलब मेरी एक बहन की बेबी है, वो हमेशा बोलती थी कि अ, उली उली, तो मैंने समझ में नहीं आया उली क्या है, तो मराठी में उड़ी, उड़ी का मतलब होता है जंप, तो उड़ी, तो वो हमेशा उली उली बोलती थी। तो ये जो होता है ना, ये इस तरीके से, तो उसको वो स्पीच और डिसऑर्डर नहीं है, वो ग्रेजुअली निकलने वाला है। पर बेसिकली हमें इस पर भी ध्यान देना है कि ये भी एक तरीके का छोटा सा डिसऑर्डर है, उसे इम्प्रूव नहीं हुआ तो हमें कंसल्टेशन करना पड़ता है। फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर है, आपको जिस रिदम में, जिस रेट में बोलना चाहिए वो रेट में आप नहीं बोल सकते, आप रुक रुक के बोलेंगे, आप हकला के बोलेंगे, तो ये आपके स्पीच डिसऑर्डर्स है। अब आगे का जो है वो देखिए एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया मतलब है वर्बल एप्रैक्सिया और डिसप्रैक्सिया। डिसप्रैक्सिया में ये होता है कि जो व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है, वो बोल नहीं पाता है। इफ somebody wants to say something to you, तो उसको बोलने में कई सारी कठिनाइयां होती है। तो वो बोलेगा जरूर, याद करके बोलेगा बोलेगा, पर वो हो सकता है बराबर ना बोले, या फिर करेक्टली या फिर कंटिन्यूएशन में ना बोल पाए। तो कई सारे, जैसे अगर एप्रेक्सिया जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वो सीवियर एप्रेक्सिया में लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, और ये भी एक तरीके की लैंग्वेज डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से हमने आज एप्रेक्सिया स्पीच स्पीच डिसऑर्डर्स के ये 3 प्रकार, डेवलपमेंटल फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, अल्जाइमर्स डिसीज, प्राइमरी डिसलेक्सिया और सेकेंडरी डिसलेक्सिया, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी, अकैल्कुलिया, ऑटिज्म, एग्राफिया, एलेक्सिया, रिसेप्टिव एफेजिया, ब्रोकाज एफेजिया और वर्निक्स एफेजिया। इस सभी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के बारे में देखा।